गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम बैक। हमने चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था एंड अब तक बहुत कुछ कर चुके हैं आगे। आई थिंक नाउ इट्स लेक्चर नंबर 6. Well, in the last lectures we saw electrostatic potential energy for two charges, for more than two charges and stuff like that. Today we are looking at electrostatic potential energy of an electric dipole in a uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद है आपको, चैप्टर 1 में आया था और उसमें आपने डाइपोल रखा था. व्हाट हैपेंड टू द डाइपोल, यू रिमेंबर? You know, this was electric field uniform. Uniform means same value everywhere. Uh, this is the dipole plus Q minus Q. This is the midpoint of the dipole. And you can see that this dipole is making an angle theta with the direction of electric field. Dipole ka length hai 2a. So this is a, this is a. Let me demarcate it. A. This is A again. So 2a is the length of this dipole. Now, if you remember, going back to chapter 1, when you place this charge plus Q in this electric field, there was this force, this QE bar plus QE bar, and this was minus QE bar out here, if you remember. And this formed like a couple, and due to this couple, the dipole performed rotational motion. It was like this, it came like this, aligned itself in the direction of the electric field. Torque का formula याद है? Let me write it down, no issues. The torque on the dipole in the uniform electric field, tau bar, मेरे साथ, P bar cross E bar, that is tau is PE sin theta. बहुत बढ़िया formula था ये. We had derived this formula in chapter 1. The torque acting on the dipole in a uniform electric field is PE sin theta, and this torque tends to align the dipole in the direction of electric field. Now suppose the dipole would be like this. Do you agree, in order to rotate it, you will have to do work? Let us say if you want to rotate it from one angle to another. Let us say to rotate the dipole by small angle d theta, the work has to be done against this torque. Against this torque is, because it is a small angle d theta, we'll say it's small work. D theta angle hai, so dw is the work done. Work is tau d theta. So this is it. And अब इंटीग्रेट कर दूंगा. The total work done to rotate the dipole from, ये टर्मिनोलॉजी टेक्स्ट बुक से ली है मैंने, नहीं तो थीटा 1 से थीटा 2 भी ले सकते हो. From angle theta 0, let us say initial angle of the dipole is theta 0, to angle theta 1 is, इंटीग्रेट कर देंगे. वर्क इज इंटीग्रल dw, कहां से लेकर कहां तक? थीटा 0 से लेकर थीटा 1 तक. तो dw कितना है? टाउ डी थीटा. और कहां गया मेरा टॉर्क? टॉर्क ये रहा, मस्त डब्बा डाल देते हैं, बहुत ही सुंदर. तो आओ, इंटीग्रल PE sin थीटा d थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा 1. PE को बाहर ले लेंगे. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. डायग्राम को उड़ाना जरूरी नहीं है अभी. PE को बाहर ले लिया जाए तो वर्क is PE. And what is integral sin theta? No problem, मेरे को पता है. इंटीग्रल sin थीटा माइनस cos थीटा, थीटा 0 से लेकर थीटा 1 तक. पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, PE
minus cos theta 1 minus cos theta 0. By minus minus is plus. So your final equation for work becomes P cos theta 0 minus cos theta 1. Now, this is equation number 2. You know, this is initial position, this is initial angle, this is final angle. Potential, now obviously this work done is stored as potential energy and likewise. But the question arises कि कौन से पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल यू नो हम चार्जेस को इंफिनिटी से लाते थे and we used to do work against the electric force. That work was stored as potential energy. ये तभी पॉसिबल है जब we take potential energy at infinity to be zero. हमने इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पकड़ा है, इसलिए संभव है. यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कौन से पोजीशन में लूं? Isn't that the prime question? Where should I take potential energy as zero? In short, what should be my initial angle? The $1,000,000 question is that we took infinity position as zero potential energy. कौन सी पोजीशन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी का नाम दूं? Which should be my initial angle? People, ध्यान से देखें. इनिशियल एंगल लेट अस टेक, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये लिया है मैंने. क्यों लिया थोड़ी देर में बताऊंगा. लेट मी टेक दिस ऑफ. टेक, I'll tell you the reason also why I'm doing this. Take initial position theta 0 as 90 degree or pi by 2. So if I take initial position pi by 2, how much is cos pi by 2? So work done is P cos pi by 2 minus cos theta. तो मैं theta 1 को theta ले रहा हूं. Cos pi by 2 is 0. So this becomes minus P cos theta. And now I'm going to write the famous statement. This work done is stored as electrostatic potential energy, which is, I'm going to write that in blue. Blue. U is minus P cos theta. And all you badameters, I'm sure you know A B cos theta is A bar dot B bar. स्केलर प्रोडक्ट बचपन में किए थे जब लॉलीपॉप खाते थे आप. सो P cos theta is how much? Minus P bar dot E bar. So beautiful expression this. The potential energy of a dipole in a uniform electric field E bar is given as minus P cos theta or minus P bar dot E bar. Let me take a couple of cases here. The first case, if your theta is 0 degree, let us say, how much will be cos 0? 1. So U, then cos theta is 1. So U is minus PE. This is minimum potential energy position. मैं यहाँ पे लिख दूंगा minimum potential energy position. And this is what is called stable. Is it visible इतना नीचे से? Let me see. I don't think so. This is stable equilibrium. I won't write it here. This is stable equilibrium. Now why should we call it stable equilibrium? You know, this goes back to the idea that everybody, everything tries to attain a situation where the potential energy is minimum. And once the potential energy is minimum, the situation is of stable equilibrium. कुछ नहीं करना पड़ता उसको. If you remember, जब पानी से आइस बनता है, liquid से solid बनता है, तो particles come closer to each other and at one point the net force becomes zero, potential energy becomes minimum. यहाँ पे water becomes ice. So liquid turns into solid. So everybody tries to achieve a position where the potential energy is minimum. So this is minimum potential energy position. Let me write this. Stable, यही लिख देता हूँ. Stable
equilibrium. Now if theta is 90 degree, what if theta is 90 degree? You will say, sir, इतना मैथ हमको भी आता है. Theta 90 degree होगा अगर cos 90 will be 0 and everybody will be happy. No problem, you are all happy. If theta is 90 degree, then cos 90 is 0, so u is also 0. देखा आपने, मैंने 90 डिग्री इनिशियल इसलिए लिया था क्योंकि इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी इज 0. इन शॉर्ट, अगर 90 डिग्री अंदाजा आ रहा है कैसे होगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा होगा. अगर ये ऐसा है तो what will be the work done to bring charge q and work done to bring charge minus q? They both will be equal, net will be 0. So in short, plus q minus q position अगर ऐसा हो, you know, like this, for example, this is plus q, this is minus q, and this is your electric field. Then the net work done to bring plus q from infinity to this point and work done to bring minus q from infinity to this point will totally be equal, net will be 0. तो यहाँ पे वो 0 वर्क हो जाता है, तो 0 potential energy position हो जाता है. So this is the idea, cos 90 is 0. And thirdly, if theta is 180 degree, cos 180 is minus 1. And so u is minus of minus PE, which is PE, and this is maximum potential energy position. This is called unstable equilibrium. You're going to listen to these, you're going to hear these words many times. Stable equilibrium, unstable equilibrium. Stable, एक example देता हूँ off the track. Suppose you're sleeping at night. So that is your minimum potential energy position. This is stable equilibrium. But if you've had a lot of tea or something, you got a lot of energy bursting inside. So even if you are, sitting on the couch, or even if you are sleeping on the bed, you are already energetic. So that you have a lot of potential energy inside you. That is unstable equilibrium. You do not feel totally at ease. So this minus PE, cos theta is 0 degree, is minimum potential energy or stable equilibrium, while theta is 180, u is P, maximum potential energy. This is unstable equilibrium. So this was the equation for potential energy of a dipole in a uniform electric field, which is minus P cos theta or minus P bar dot E bar. If you want, well, what they have given in the textbook out of the way, they have tried to derive this equation using the idea that we dealt with in the last and the last to last lectures. Namely bringing something from infinity, putting it there and work done and all that. So I will try to do that also. We will arrive at the same equation but in a different manner. So keep this in mind. And I'm rubbing all this. Just take a look. I'll rub this. वो भी एक अलग ही स्टाइल है. And I'm back. Same diagram. बस थोड़ा सा अलगता दिखाई देगा, थोड़ा सा अलग. ओके, क्या सीन है सर, क्या करने वाले हो फिर से? अरे फिर से कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ चीजों को दूर से लाके यहां रखने वाले, डाइपोल को बनाने वाले. सो स्टे विथ मी. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, कुछ और नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी to point A in the electric field. So my first step, let's bring plus Q charge from infinity. I'm using precisely the same language that we used in the last lecture. When we were bringing charges from infinity to any given point,
So that is precisely the idea. I already have an electric field and I'm going to bring plus q from infinity. I'm going to put it here. So this is my plus q here. Do you agree I have to do work against this electric field? ये electric field नहीं होता तो I would not have to do work. Let's bring plus q from infinity to point A in electric field. लिखने की जरूरत नहीं फिर भी. We have to do work against external electric field. कितना वर्क डन है भाई? हमारे पास इक्वेशन है सर, W1 you remember Q into V at R1 bar. याद आई उसकी? यही था, सेम टू सेम. Now we bring minus Q from infinity to point B having position vector R2 bar. वही सेम टू सेम भाषा. वर्क डन किसके किसके खिलाफ करना पड़ेगा? वीडियो पॉज करो, किसके किसके खिलाफ मन में सोच लो, किसके किसके. हो गया, सोच लिया, अब चालू करो वीडियो. वर्क दो चीजों के खिलाफ करना पड़ेगा. पहला अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दीवार एंड दूसरा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. बराबर? एम आई बीइंग लॉजिकल? ओके. कोई दिक्कत हुई समझने में? नहीं ना? तो लेट्स टेक इट अप. सो वी हैव टू डू वर्क. भाई काम तो करना पड़ेगा यार, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन. टू डू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल. ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग पढ़ भी रहे हैं एंड पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा क्या हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड दीवार एंड ऑल्सो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. तो चलो आ जाओ. W2 कितना है? अब चार्ज कौन सा ला रहे साहब? माइनस क्यू इंटू V एट R2 बार एंड प्लस कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू इंटू भाई व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू प्लस क्यू. B इधर है, प्लस क्यू इधर है. प्लस क्यू से कितना दूरी पे है B? 2a. तो माइनस क्यू, अच्छा लिखते हैं, माइनस क्यू इंटू V एट R2 बार प्लस माइनस क्यू इंटू के क्यू बाय डिस्टेंस कितना भाई साहब? 2a. ओके. तो कितना हुआ ये? तो ये एंड में लिख दे. सो टोटल वर्क डन. आपको अंदाजा आया? मैं वही चीजें कर रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम किया था, लास्ट लेक्चर 5 में. पहले प्लस क्यू को लाए इंफिनिटी से यहां तक. कितना वर्क करना पड़ा? सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ. तो दैट इज प्लस क्यू इंटू वी एट R1 बार. अब माइनस क्यू को लाए नहीं, अब तो कहां गया, लिखा ही नहीं. अब माइनस क्यू को लाए इंफिनिटी से यहां तक. किस किस के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा? पहला अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दीवार एंड दूसरा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. तो वो हो गया तुम्हारा W2. टोटल वर्क डन. बड़ा बोर्ड होता तो मजा आता, पर फिर वीडियो नहीं हो पाता. सो टोटल वर्क डन. W is W1 plus W2. कहते इजी पीजी जापानीजी. तो W1 ये रहा, Q इंटू V एट R1 बार. W2 ये रहा, माइनस Q इंटू लगा दें. चलो V एट R1 बार माइनस Q इंटू V एट R2 बार एंड माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a. ये Q कॉमन ले लो क्या? ये बाजू वाला उड़ा देते हैं, जगह तो चाहिए ना एक्सपांशन के लिए. सो माइनस क्यू उड़ाने पर क्या मिल जाएंगे? क्यू को कॉमन में, माइनस क्यू उड़ाने पर नहीं, क्यू को कॉमन रखने पर क्यू V एट R1 बार माइनस V एट R2 बार minus kq square by 2a. This work done is stored as potential energy.
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज, मैं जानता हूं आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख के डर रहे हैं, पर डरना नहीं, क्योंकि जो डर गया वो अपने घर गया। तो बोले इधर अपने घर ही बैठे, अच्छे टेंशन नहीं। ओके भाई, ये जो बीच का टर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Isn't this potential at A minus potential at point B? In short, this is potential difference. और मुझे potential difference find करना है। Here, V at R1 bar minus V at R2 bar is potential difference between points A and B. Let us call it delta V. ओके डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी फाइंड करना है नाउ। अच्छा, बचपन में आपने एक इक्वेशन देखा था याद है, E इज माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो हाउ मच इज डेल्टा वी? Isn't it minus E into delta R? Delta R is the difference of distance between the 2 points in the direction of the electric field. तो सर in the direction of electric field मतलब, in short, इधर से लेकर इधर तक का कितना डिस्टेंस है वो चाहिए। अब ये तो ए है, ये पूरा 2a है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। सो दिस इज 2a, दिस इज थीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको थोड़ा हटाएंगे तो दिखाई देगा कौन, 2a cos थीटा। जबरदस्त इन्वेंशन हो गया। आपने देखा डेल्टा आर फ्रॉम फिगूर, डेल्टा आर इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो 2a cos थीटा, और उसी वजह से हमारा डेल्टा वी बन गया। ये जगह बहुत नीचे है तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और फिर मचाएंगे। तो डेल्टा आर की जगह 2a cos थीटा लगाएंगे और क्या पाएंगे, तो डेल्टा वी इज माइनस ई इंटू 2a cos थीटा। तुम बोलोगे सर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो 2a है, जानता हूं मैं, पर हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस हुआ वो चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट ये 2a है, ये थीटा, तो ये हो गया 2a cos थीटा। ऑलराइट, ये चाहिए हमको, यो नहीं। ओके, ये डेल्टा आर जो है ना, वो डिस्टेंस का डिफरेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, इसलिए 2a cos थीटा, नहीं तो 2a ले लेते। ओके, सो ये हो गया, इसको डालेंगे वहां पे 10। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बिकम्स हो जाता है जी, u डैश इज q इंटू माइनस ई इंटू 2a cos थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a। तुम बोलोगे सर q इंटू 2a हम पहचानते हैं, p है वो। अच्छा है, तो p लो फिर, मतलब p ले लो फिर, और p लेने के बाद लिख देते हैं यहां पे बट करके, बट ये बट बहुत जरूरी है, हमारी ध्यान रखता है वो। बट q इंटू 2a इज p, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो तुम्हारा u डैश क्या बन गया श्रीमान, माइनस p इंटू ई इंटू कॉस थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a। इफ यू आर लुकिंग एट दिस इक्वेशन केयरफुली, तुम बोले सर ये वही अपना, हाँ अच्छा इसको लिख देते हैं माइनस पी बार डॉट ई बार। तुम बोलोगे सर ये तो पहचानता हूं मैं, ये लास्ट टाइम आया था, बस ये नया आइटम है सर। ये नया आइटम का क्या करेंगे ये वाला, इससे तो इक्वेशन बिगाड़ दिया हमारा। भूल जाते हो। डू यू अग्री, कोई भी डाइपोल के लिए के क्यू स्क्वायर बाई 2a तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे डाइपोल ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, कैसा भी हो। विल दिस डिपेंड की ओरिएंटेशन क्या है, किसको कितना वर्क करना पड़ा, नहीं ना। इन शॉर्ट दिस टर्म
is going to be constant. और जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, जब भी वर्क डन की बात होगी, will a constant make any difference? No, it will not. As a result, इस टर्म का कोई मतलब नहीं होता. The second term, the term kq square by 2a is constant for a dipole. So मैं नीचे वाला भी उड़ा देता हूं. So for potential energy, it is not considered, it is not taken. तो तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन वापिस आ रहा है माइनस पी बार डॉट ई बार विच इज माइनस पी कॉस थीटा. तो वो तुमसे एग्जाम में ये भी कह सकते हैं कि डिराइव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल. तो पहले हमने जो आइडिया लिया, you can do that, you can write that as an answer. But they might also ask you as a trick question that derive the equation for electrostatic potential energy of a dipole using the idea of bringing charges from infinity and finding work done. So in that case, you are going to do this, that the second part that we did already. But be it any case, the potential energy of a dipole is going to be U is minus P bar dot E bar, which is minus P cos theta. Do remember the equations that I've given you. Also for JE, it is important that work done to rotate a dipole from angle theta 0 to theta 1 is given as work is P cos theta 0 minus cos theta 1. ये भी एक इक्वेशन था जिसके बाद हमने थीटा 0 को 90 लिया था and stuff like that. So these are the two equations that complete the idea for electrostatic potential energy of a dipole. इसको यूज करते हुए मैं करने जा रहा हूं illustration 2.5 from the textbook. So you might as well take a look. Illustration 2.5 is on 2.6. Sorry, 2.6 is on page number 67. I have it right in front of me. I'm going to take this off now. बढ़िया चीज थी. So what does it say? The textbook is right here with me. What does it say? It says illustration 2.6. It says a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment P दिया हुआ है, which is 10 raised to minus 29 कूलम मीटर. हर एक डाइपोल, हर एक मॉलिक्यूल की इतनी डाइपोल मोमेंट है. A mole of this substance, 1 mole, remember नए नए डेटा आ रहे हैं, 1 mole is polarized at low temperature by applying strong electric field, E दिया हुआ है 10 raised to 6 volt per meter, and the direction of the field is suddenly changed. भाई सबसे पहले इनिशियल एंगल जिसको हम थीटा 0 कहते थे वो 0 डिग्री है, बराबर. फिर फाइनल एंगल नया कितना है, 60 डिग्री है. Estimate the heat released by the substance assuming in aligning the dipoles along the new direction, assuming 100% polarization. Okay. सबसे पहली बात भाई एक मॉलिक्यूल का 10 raised to minus 29 कूलम मीटर है और 1 मोल सब्सटेंस की बात चली है. तो सबसे पहले in 1 mole, I'm sure everybody knows, there are 6 into 10 raised to 23 molecules. 6.023 भी लिख सकते हो, but it will not make a very big difference. हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इतना है, तो 6 into 10 raised to 23 molecules का डाइपोल मोमेंट कितना होगा. So total dipole moment of all molecules is कितना, P is 10 raised to minus 29 into 6 into 10 raised to 23. Minus 29 plus 23 is minus 6. So this is my dipole moment. वही लिखता हूं मैं.
So P is 6 into 10 raised to minus 6 coulomb meter. Okay. Now इनिशियल एंगल कितना था 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? we'll call it ui initial minus p cos 0 degree. Cos 0 is 1, so which is minus 6 into 10 raised to minus 6. Electric field कितना? 10 raised to 6. Cos 0 is 1. So minus 6 plus 6 gio, minus 6 joule. And final potential energy, by final angle कितना है? 60. So minus p cos 60. And I think everyone out there knows that cos 60 is 0.5. Minus 6 plus 6 is gone. 6 into 0.5 minus 3 joule. So change in potential energy देखें कितनी हो रही है? Isn't it UF minus UI? UF कितना है? minus 3. Minus UI कितना है? minus 6. Oh, so minus 3 plus 6, which is 3 joule. Oh my God. Can you see? इतनी एनर्जी चली गई है हमारी. कहाँ गई होगी? This has been released. This has been liberated as heat. So this much energy has been liberated as heat energy. So ये हो गया आपका illustration 2.6. Might as well have a look. I'll just be back. अब कर रहे हैं electrostatics of conductors. काफी लवली टॉपिक है. So इसमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. ओके, लो में आ गया. हमने चैप्टर 1 में, एंड यू एज सच हैव सीन दिस इन केमिस्ट्री आल्सो, एंड बहुत सारे टाइम पे हमने इनकी बातें भी करी है. यू नो देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ कंडक्टर्स. In conductors हैं two main types of materials, conductors and insulators. हमने चैप्टर 1 में भी इसका डिस्कशन किया था कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं which have a large amount of free electrons. You know, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल्स में होते हैं उनको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, वो फ्री हो जाते हैं और पूरे कंडक्टर रहते हैं. You know, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइजन्स करते हैं दूसरे पॉजिटिव आयंस के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड उनका चक्कर चलता जाता है. बस वो कहीं भी जा सकते हैं, कंडक्टर के बाहर नहीं जा सकते. ओके, सो रिमेंबर दैट कंडक्टर्स आर दोज व्हिच हैव एन अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल ग्लास, वुड, प्लास्टिक, these are all insulators. Metals are good conductors. Okay, somebody might also tell me ki sir, we have seen certain solutions also which are good conductors. You know, they are electrolytic conductors. Electrolytic conductors में you can divide this, you know, charge carriers into two types, positive ions and negative ions. And electric field डालो तो positive ions एक दिशा में जाएंगे, negative ions दूसरी दिशा में जाएंगे, opposite direction में. साथ साथ में chemical forces भी होंगे. But all that is not to be taken into account right now. Right now we are focusing only on metallic conductors. Alright, metals पे focus कर रहे हैं. अगर मैं उनको electric field दूंगा तो क्या होगा, क्या situation होगी अंदर and all. So let's get back to business, and the topic's name is electrostatic properties of conductors. Okay, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा. टेक्स्ट बुक में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, मैं थोड़ा और अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. माय फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट एज दे राइट इन द टेक्स्ट बुक इज दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor
इज 0। ये है उनका स्टेटमेंट। आई एम गोइंग टू वैलिडेट दैट, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट, आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू किस तरह वर्क होता है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक मेटालिक रॉड है, लेट अस सी, कंसीडर मेटालिक रॉड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बेचारा। और जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तो इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्जेस, इट हैज गॉट नेगेटिव चार्जेस, एंड टोटल मिला करके द नेट सम ऑफ ऑल द चार्जेस इज गोइंग टू बी 0। तो ये मैंने मेटालिक रॉड रखा हुआ है, दिस इज अ मेटालिक रॉड, एंड इसका अंदर न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज, लेट अस ड्रॉ सम पॉजिटिव चार्ज, 5 बनाते, 5 अच्छा नंबर रहता है, 1 2 3 4 5, एंड वैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स बना देते, नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5। कैन यू सी टोटल 6 बना देते, चलो यार आप भी क्या याद रखोगे। ओके 6 बना दिए। कैन यू सी टोटल अंदर क्या है, नेट चार्ज 0 है, नेट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं। Now what happens is I place this in an external electric field. ये आया आपका external electric field. Let's call it E external. You know from chapter 1 that whenever a charge is placed in an external electric field, it experiences force. Under the effect of this force, positive charges move in the direction of the electric field, negative charges move in the direction opposite to the electric field. तो हौले हौले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस पे इस तरफ का फोर्स बढ़ने वाला है, इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस उल्टी दिशा में। सो स्लोली एंड स्टेडीली क्या होगा, नया सिचुएशन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस यहां जाना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहां जाना शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ी ही बना रहा हूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, ये है, ये रहा, अरे बाप, अरे ये डायग्राम में झोल गया था। हाँ अब ठीक है। तुम बोलोगे ओके सर नो प्रॉब्लम, जाने दो, जिसको जाना है जाए। पर एक बात ध्यान रख दो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां होते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहां होते जाएंगे, do you agree a new type of electric field will start inside the conductor? तुम बोलोगे क्यों सर, क्यों चालू हो जाएगा, क्या दिक्कत है? भाई पहले सब साथ साथ थे, पॉजिटिव नेगेटिव सब साथ साथ थे, पर अब पॉजिटिव एक दिशा में होने लगे, नेगेटिव दूसरी, पॉजिटिव यहां जमा होने लगे, नेगेटिव यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव, डाइपोल को याद रखो, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो पॉजिटिव से नेगेटिव एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगा जो इस तरफ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है तुम्हारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड, एंड ये पॉजिटिव चार्जेस जाते गए जाते गए जाते गए, जमा होते गए होते गए होते गए, ये फील्ड भी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पॉइंट पे आके एट वन पॉइंट E inside becomes equal to E external. So बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है एक्सटर्नल, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एंड एक पॉइंट पे आके ये फोर्सेस लेके जाते गए, और एक पॉइंट पे E inside becomes equal to E external. So all movement of charges stops now. जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गया, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तुम बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, isn't it E external minus E inside? E external इस तरफ, E inside इस तरफ, दोनों पर इक्वल हो गए ना, और इक्वल होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। सो ये सिचुएशन, तुम रॉड को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बाहर रखा था,
सपोज ये रॉड है, इसको बाहर रखा है, कोई फील्ड नहीं है, डू यू एग्री? अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है अंदर, क्योंकि सारे चार्जेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेट फील्ड जीरो। पर तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल में भी रखोगे, चार्जेस मूव होंगे, बट इस तरह मूव होंगे कि वापस थोड़ी देर बाद अंदर अंदर की रीजन में, सपोज मैं रेड कलर का कोई सिचुएशन बनाऊं, ये इसमें ब्लू कलर का इस तरफ है और काले कलर का इस तरफ है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट कितना हो गया इसके अंदर? जीरो. So a very important property for a metallic conductor is that the net electric field inside a metallic conductor, electric field हो या ना हो, will external will always be zero. Fair enough. So that is the first point, that the net electric field inside a metallic conductor is zero. ये property है उसका. दूसरा point, मैं दूसरा point शुरू कर रहा हूं. उड़ा दो. ओके, नए नए डायग्राम बनाएंगे, टेंशन मत लो. सेकंड पॉइंट ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the surface is always perpendicular to that point. In short, कोई भी सरफेस हो, उसके ऊपर चार्ज लगाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा. नाउ यू माइट आस्क मी, सर ये क्या है? अच्छा ठीक है, चलो. यू नो, मैं एक एग्जांपल, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है. दिस वाज अ शेल, यू रिमेंबर दैट पानी पूरी शॉट्स, एंड सारा चार्ज कहां पे था? ऑन द सरफेस. यू नो, दिस charge was evenly distributed over the entire outer surface. According to this point, now ये charge है, positive charge है, तो it will give rise to electric field. According to this point, this electric field can only be in this perpendicular direction. थोड़ा टेढ़ा हो गया. Can you see this? They say that electric field should always be perpendicular at every given point. अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है? बाहर आता है. सर, can you see I'm drawing the electric field lines perpendicular to every given point? Maybe if you are looking at this diagram in totality, you might feel a bit nostalgic. You might tend to go back into your childhood, wherein you had drawn diagrams like this in your art classes, didn't you? You remember that? बचपन में बनाते थे, मैंने तो बनाए थे. ये किसको रिजेंबल करता है? ये डायग्राम आपने बचपन में बनाए होंगे बहुत सारे, यू नो, आर्ट क्लास में डायग्राम. मेरा तो आर्ट कमजोर था. किसके जैसा लगता है ये डायग्राम? Everybody से, सर ये तो हमारे सूरज दादा है. सन, I used to draw the sun like this. तो ऐसा कैसा आपने ये सूरज दादा बनाया? हाँ और नहीं. हाँ इसलिए क्योंकि सूरज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटर सरफेस में. एंड ये जो, आई थिंक द फर्स्ट एवर आर्टिस्ट हु मेड एन इंप्रेशन ऑफ द सन लाइक दिस, maybe he would have been a man of science, a person of science, not to be gender discriminated, but he might have been a person of science because he had known that charges would be there on the surface, and as a result electric field would be coming out. So he draws the diagram for electric field. These are electric field diagrams, electric field lines, and they look like the rays of the sun. So in a very short, you know, ये जो lines है, these are all drawn perpendicular to the surface. Now somebody of you might raise a question, sir ये तो आपने बना डाला, पर मेरे को परपेंडिकुलर अच्छा नहीं लगता, मेरे को पैरेलल अच्छा लगता है. सर ये ऐसा रखो ना, आपको ऐसा अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है.
ई पैरेलल। वाह, रखो ना, मेरे को अच्छा लगता। ओके, आपका मान लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता या ऐसा भी होता, कैसा भी होता सिवाय परपेंडिकुलर, do you agree there would have been a component along the surface, and due to this component, parallel component along the surface, you agree this charge would have moved over the surface? तो क्या सिचुएशन इक्विलिब्रियम की रहती? नहीं, ये चार्जेस सारे इमोबाइल हैं, स्टैटिक सिचुएशन है, नो करंट, नो मोशन ऑफ चार्जेस एनीवेयर, तभी तो इक्विलिब्रियम है। पर अगर कोई पैरेलल कंपोनेंट होता तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस पैरेलल कंपोनेंट charges would have moved on the surface, thus constituting inequilibrium. Thus important यही है। So if there were a parallel component, there would be motion of charges of electric field, there would be motion of charges on the surface constituting current, thus constituting current, which is not possible. And as a result sorry I get back again to the main idea that if there is charge on the surface, then electric field will only be in a direction perpendicular to that point on the surface. Electric field cannot have any other component जो parallel या किसी और दिशा में हो. It would not be possible. So my second point is that electric field is always perpendicular to the surface. इस diagram को हमेशा याद रखिएगा. Okay, third point. Third point is what? The interior of the conductor can have no excess charge. Okay, ये पहले point के जैसा ही था. उसका actually I am going according to the chronology given in the textbook. पर actually इस idea को हम last वाले से compare भी कर सकते हैं कि number 3, the net charge inside a conductor has to be 0 and excess charge has only to be on the surface, and excess charge can only be on the surface. So big statement but small easy idea. क्या बात है? अभी हमने कंडक्टर लिया था लास्ट, याद है? ये कंडक्टर था. मैं पूरा डायग्राम फिर से नहीं बनाऊंगा, बट यू रिमेंबर यहाँ पॉजिटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था एंड ऑल, एंड पॉजिटिव यहाँ चले गए थे, नेगेटिव यहाँ आ गए थे, एंड हमने यहाँ पे ये छोटा सा गॉसियन सरफेस लिया था एंड हमने कहा था इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस what was the net electric field? 0. That was our first point. So I'm going to write inside this Gaussian surface, consider a Gaussian surface. Pen धोखा दे रही है आज. Inside the conductor, and what is the net electric field inside the surface? The net electric field inside this surface is 0. Okay. Remember Gauss's law? By Gauss-Babu के नियम से total flux phi, which is integral E bar dot dA bar over the entire surface, is sigma q by epsilon 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो what is the total charge? Can this net charge be non-zero? इल्ला है, possible ही नहीं है. So if E is 0, then but of course
sigma q also has to be 0. That is net charge अंदर क्या हो जाएगा, 0 होना ही है, क्योंकि अगर net charge होता अंदर, do you agree it would have given rise to a new electric field which would have broken the equilibrium condition? ये possible ही नहीं होता. So if electric field is 0, then sigma q is also 0. And तू बोलोगे सर मैं अगर चार्ज डालूं तो डालना, पर तू जो भी डालेगा वो सब कुछ आउटर सरफेस पे ही आएगा, अंदर कुछ होगा नहीं. और जैसे आउटर सरफेस पे आएगा नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये वाला, पर अंदर के साथ कोई लेना देना नहीं है साहब. अंदर तो जो है वो सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी कुछ होगा वो आउटर सरफेस पे ही होगा. सो इफ यू पुट एक्सेस चार्ज, दैट चार्ज विल ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस. अंदर के सिचुएशन में, अंदर के गॉसियन सरफेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और एज अ रिजल्ट नेट चार्ज भी 0 है. So my third point is that the net charge inside a conductor has to be 0, which is thus proved, and any more excess charge that you put will have to be distributed on its outer surface. अंदर कुछ नहीं, अंदर बात नहीं कर, बराबर. So that is my third point. Have a look at it. And अब fourth point की बातें करेंगे कि यही सेम ओल्ड आइडिया लेता हूं, या सरफेस का भी ले सकते हैं कि अंदर, you know, inside the surface, as they say, potential is constant. The potential inside a surface is constant and it has got the same value अंदर या बाहर, value same रहेगी. So number 4, value of electric potential is same inside as well as on the surface of the conductor. A very, very normal stuff idea. I will show that to you. Diagrams interchange हो रहे, alternate हो रहे. जो डायग्राम 1 में बनाया था वो 3 में फिर से बनाया, जो डायग्राम 2 में बनाया था वो 4 में फिर से बनाया. So this is as it is. ये वही हो अपना hollow sphere. Symmetrical stuff. और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मैं सारे एरो नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट सूरत दादा हियर अगेन. अच्छा, लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट्स. लेट्स कंसीडर दिस टू बी, छोड़ना दिस पॉइंट A and let's consider this to be point B. What is the electric field at point A inside the hollow sphere? 0. What is the electric field at point B inside the hollow sphere? 0. If both have 0 electric field, do you agree in order to take a charge from A to B, no work will have to be done? So that is the creamiest idea. So as EA is same as EB, so to take a charge from point A to point B, no work has to be done. Cream here, no work. In short, point A का potential is same as point B का potential. So potential at point A is same as potential at point B. And ऐसा ही नहीं, B यहाँ हो, यहाँ C हो, कुछ भी हो. सपोज ये तो ठीक है B है, सपोज यहाँ C है, तो यहाँ पे लोग बोलेंगे सर ये तो सरफेस पे हो गया ना, सरफेस पे तो चार्ज है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? क्या सरफेस पे फील्ड है? नहीं, सरफेस से बाहर निकलता हुआ फील्ड है. तो इस पॉइंट ए में और पॉइंट सी में बात कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम है. हाँ, अगर तुम ये पॉइंट ए लो और ये पॉइंट डी लो, कैन यू सी, अब यहां जाते हुए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. यहां तक फील्ड है ही नहीं कोई, तो भले ऑन द सरफेस है, पर क्या यहाँ पे कोई फील्ड की वैल्यू है सरफेस तक पहुंचते हुए? नहीं. एज ए रिजल्ट
इनसाइड हो या ऑन, सरफेस अपना इनसाइड हो या ऑन, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ, जैसे तुम आगे जाओ आउटसाइड द सरफेस तो पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी, बिकॉज नाउ यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। Thus, potential at any point inside or on the surface of a conductor is same. Once we go outside the conductor, potential changes due to the presence of electric field. So जैसे हम बाहर जाएंगे तभी उसमें आगे जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, नहीं तो तब तक नहीं करना पड़ेगा। So potential at any point inside or on the surface will be same, will have the same value. This is number 4. Number 5, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रहा है नंबर 5 हमको। नंबर 5 में मेरे पास एक कंडक्टर है, वैसा ही जैसा पहले था, और उस इरेगुलर शेप कंडक्टर है जैसा हमने पहले देखा। नंबर 5, this gives us the equation for electric field. Electric field on the surface of a conductor. You know, this can be asked as a theory question, a good theory question. Okay, क्या है situation? Consider an irregular shape conductor. कोई specific shape नहीं है. It has surface charge density sigma और uniformly distributed charges है। तो ये हो गया तुम्हारा irregular shaped conductor, और ये हमने चार्ज डिपॉजिट किया इसके ऊपर, एंड ये जो हमने चार्ज डिपॉजिट किया बिकॉज इट इज लाइंग टोटली ऑन द सरफेस, सो surface charge density is sigma. What is our agenda? Okay, तुमको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मैं सिर्फ कुछ एक एरोस बना रहा हूं, डोंट गेट हैसल। और सपोज ये पॉइंट है P, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना हो, ये हमको जानना है। ओके, नो प्रॉब्लम। गॉस लॉ है जिंदा, तो हम उसको यूज करेंगे, बट गॉस लॉ यूज करने के लिए वी नीड अ गॉसियन सरफेस। तो एक नए प्रकार की गॉसियन सरफेस बनाते हैं, यू नो कोक कैन टाइप, यू नो कोक कैन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ पिल बॉक्स। ये रहा आपका कोक कैन, एंड ये रहा तुम्हारा पॉइंट P। सो वी ड्रॉ पिल बॉक्स, ये लोग पिल बॉक्स कहते हैं। पिल बॉक्स मतलब दवाई का डब्बा बोल सकते हो या कोक कैन जैसा सिचुएशन बोल सकते हो। अ पिल बॉक्स शेप्ड गॉसियन सरफेस as shown. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस कंसिडर ये जो है उसका एरिया डेल्टा एस। नाउ इफ यू सी, नीचे कोई फील्ड नहीं है, एज अ रिजल्ट नीचे लोअर हाफ ऑफ द पिल बॉक्स, बिकॉज देयर इज नो फील्ड, सो डू यू एग्री देयर इज नो फ्लक्स, एज देयर इज no electric field in bottom half, electric field in the lower half, lower part of surface, so flux is zero. So flux with lower part, ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, lower part, lower half is zero. तो flux is associated only with upper half. तो by Gauss's law, flux phi, which is E bar dot dA bar is sigma q by epsilon 0. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E और एरिया कितना डेल्टा S,
तो E इंटू डेल्टा एस। अच्छा, कितना चार्ज एनक्लोज हुआ होगा इसमें? इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका? डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन जीरो। थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वही होता है ना, सिग्मा इज चार्ज ओवर एरिया, सो चार्ज इज सिग्मा इंटू एरिया। तो चार्ज सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है? डेल्टा एस। तो डेल्टा एस कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। माय गॉड, रॉकिंग एंड रोलिंग इक्वेशन। So electric field at any point on the surface of a conductor having charge density sigma is given as E is sigma by epsilon zero. Vector लगाना है, लगा सकते हो। In short, अगर पॉजिटिव होगा तो it will point outwards, radially outwards. नेगेटिव होगा तो it will point inside. So depending on that, तो electric field E is sigma by epsilon zero. So लिखना है तो लिख लो, if sigma greater than zero, E points outwards, and if sigma less than zero, E points inwards. As simple as it looks. So this is the fifth characteristic, second last, penultimate. और अब आ रही है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। वैसे इनका न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई खास इस्तेमाल नहीं है, बट क्या करना है तो करना है, थियरी क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये बहुत बार। सो लास्ट आइटम, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आइटम। Last property is property 6, which is called electrostatic shielding. Now I love this property a lot. Now why do I love it a lot? क्योंकि काफी डिफेंसिव प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और बहुत बार अपने को काम आती है, बस अपने को अंदाजा नहीं आता कि काम आ रही है। इस प्रॉपर्टी में हमने प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 सबका इस्तेमाल कर रखा है। क्या सीन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर में ऊपर चार्ज वार्ज है, जो भी है कर रही है, चार्ज हैज बीन डिपॉजिटेड आउटसाइड, एंड अंदर एक कैविटी है। कैविटी मतलब खाली जगह है, और ये पूछना चाह रहे हैं कि इस कैविटी में व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई कोई लोड नहीं है, आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लो इस कैविटी के इर्द गिर्द, एंड ये गॉसियन सरफेस है, एंड बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी नो दैट इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, inside the Gaussian surface, how much is the electric field? 0. तो इस पूरे Gaussian surface में जिसमें कैविटी भी आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. तो कैविटी में भी कुछ भी हो सिचुएशन, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0. नाउ यू विल टेल मी सर ये तो ठीक है, नई बात क्या है इसमें? नई बात बताओ। ओके, नई बात बताता हूं कैसे डिफेंसिव है। ओके, अंडरस्टैंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप लोग कार में जा रहे हैं, लेट अस से, ओके, दिस इज अ कार। ये कौन सी कार है मैं नहीं जानता हूं, मेटल बॉडी की कार है, एंड यू आर सिटिंग इनसाइड, एंड बरसात का टाइम है, बिजलियां कड़क रही हैं एंड ऑल, ढा ढा ढा, चार्ज डिपोजिशन इज नाउ गोइंग टू टेक प्लेस। नाउ दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर विद अ कैविटी, अंदर से हॉलो है ना गड्डी तुम्हारी, तो सारे चार्जेस कहां डिपॉजिट होंगे? आपके गड्डी के आउटर सरफेस पे। यू डोंट नो इट, बट चार्जेस आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर आउटर सरफेस। आप बैठे अंदर, आपको अंदाजा ही नहीं। याद रखें, ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, और उतने में बिजली गिरती है। भाई गंभीर परिस्थिति है, तुम्हारी गाड़ी पे बिजली गिर रही है, लाइटनिंग इज फॉलिंग ऑन योर कार, यू आर अ ह्यूमन बॉडी, यू आर अ कंडक्टर। सर क्या होगा हमारा? क्या बिजली हमारे थ्रू होते हुए धरती में चली जाएगी और हमारा बारबेक्यू हो जाएगा? सल्ली फ्राई नहीं, टेंशन मतलब। गॉस लॉ comes to your rescue
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज कम टू योर रेस्क्यू। सर कहना क्या चाहते हो विस्तार में बताओ। ओके, आई एम डूइंग इट इन विस्तार, डोंट वरी। तुम थे गड्डी में, बट इजंट दिस लाइक अ कैविटी? एंड थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि कोई भी कैविटी हो किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, इनसाइड दिस कैविटी what is the net electric field? Zero. And what is the net charge? Zero. So in short, ये इस एरिया में न कोई फील्ड है न कोई चार्ज है, तो बिजली को पास होने का कोई रास्ता नहीं है। यू अंडरस्टैंड? रास्ता मिलेगा तभी पास होगी ना, पर ये तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो चार्ज वाला सिचुएशन है, तो कोई रास्ता मिलेगा नहीं बिजली को, तो बिजली यो होती हुई धरती में चली जाएगी। सो आप बैठे हैं, आपको कुछ एक्ट्स लाइक अ शील्ड, आप शील्ड हो गए इस बड़ी लाइटनिंग से। यू नो लाइटनिंग का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है पता है? 10 लाख वोल्ट, लाखों वोल्ट में होता है वो, लाखों। ये आपके घर का 220 है, 220 वोल्ट। बिजली लाख, 2 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन द बिजली, तो लाखों में होता है। गलती से आपके बॉडी के थ्रू चली गई ना, वहीं पे फ्राई हो जाओगे टोटल। सो हम नहीं चाहते कि फ्राई हो जाओ। सो बिजली अगर गिरे भी तो आपको कुछ नहीं होना जाना, आप बैठे रहना गाड़ी में, बिजली बाहर से होते हुए नीचे धरती में उतर जाएगी। यू आर सेफ। हाँ, गलती से बिजली हो रही हो तो गाड़ी छोड़ के किसी पेड़ के नीचे मत चले जाना कि मैं यहां सेफ हो जाऊंगा। नहीं, पेड़ तो और डेंजर है। गाड़ी के अंदर बैठे रहना, शीशे चढ़ा रहना, हाथ हाथ मत निकालना बाहर, बराबर? कुछ मुंडी विंडी कुछ बाहर मत निकालना, अंदर बचे रहोगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एंड इसी आइडिया को हम बहुत चीजों में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो, उसको प्रोटेक्ट करना हो, तो मेटेलिक कंटेनर में रखते हैं। तो बोलो सर मेटल है, अगर कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा, अंदर कैविटी जैसा बन गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट चार्ज इज जीरो, तो अंदर का जो भी वस्तु है, जो भी आइटम है, इट विल बी प्रोटेक्टेड। दिस इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहां पे पोटेंशियल वगैरह का आइडिया खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर्स की बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, एंजॉय।